तो कुर्सी की जगह पे रखो बहुत। কেটিডিসিতে এসে গেছি, তো এইখানে এলে ফার্স্ট হচ্ছে এই গল্ফ ক্লাব और वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तब क्या करेंगे? फिर तो मेरे को फोन करना, तो मतलब मैं दूसरा बेड भी भेज दूंगा या पैसा ही वापस भेज दूंगा और कुछ। আমরা এসেছি কেসার কটেজ। দেখো তেল বার করবে। इसको देखो कैसे पहचानते हैं, हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव इट केसर इज ओरिजिनल और डुप्लीकेट। मेन प्योरिटी क्या है, जैसे हमारा पसीना होता है ना, ये पहाड़ों का पसीना होता है। जो पिए कहवा वो करी बाबा। ड्रेस কাশ্মীরে গেছি গুলমার্গ। এখানে আমাদের জেকে ট্রেডিসের কটেজ করা আছে। গুলমার্গের নজারা উপভোগ করুন সবাই। আজ আপনাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে রোদ বরফের সাথে খেলা করে। পাইন দেবদারুর ঘন জঙ্গল ঢেকে যায় কখনো সাদা বরফে, আবার বর্ষার নির্মল ধারায় দেখা যায় সবুজের সমারোহ। কাশ্মীর বললেই ভ্রমণপ্রেমীদের মাথায় যে জায়গার নাম সবার আগে আসে বা যে জায়গার সৌন্দর্য বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার সাধ্যে নেই, যে জায়গাকে আগে বলা হতো দেবী গৌরীর পথ বা গৌরী পথ, হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার কোলে অবস্থিত বারামুলা জেলার অন্তর্গত গুলমার্গ, যার ছায়াসঙ্গী সৌন্দর্য শুধুই সৌন্দর্য। আগের এপিসোডে আপনাদের দেখিয়েছি পেহেলগামের সাইট সিন, এই এপিসোডে শোনাবো পেহেলগাম থেকে গুলমার্গ যাওয়ার গল্প। সাথে থাকবে ক্রিকেট ব্যাট তৈরির কারখানা, পেহেলগামের হেরিটেজ দোকান আর পাম্পোরের কেশর ও ড্রাই ফ্রুটস। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে দেরি না করে সবাইকে অভিযাত্রী চ্যানেলে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের কাশ্মীর সিরিজের 5th এপিসোড, পেহেলগাম টু গুলমার্গ। গুড মর্নিং ফ্রম পেহেলগাম। এখন বাজে প্রায় সকাল 9টা। আমাদের সবাই চলে এসেছে এই লনের এখানে ব্রেকফাস্ট করতে। আজকে ব্রেকফাস্ট মেনু হচ্ছে ব্রেড বাটার অমলেট। আর আজকে আমরা পেহেলগাম ছেড়ে যাব হচ্ছে গুলমার্গের দিকে। তো 9টা এখন বাজে, 9:30টার মধ্যে চেক আউট করার প্ল্যানিং রয়েছে। এই হচ্ছে রিঙ্কুজি আমাদের। রিঙ্কুজি, गुलमर्ग कितना दूर है यहाँ से? गुलमर्ग यहाँ से 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? 4 घंटे लगे जाएंगे। 4 घंटा। গতকালের সাইট সিন করে এসে ডিনার সেরেই আমরা লাগেজপত্র গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলাম যাতে সকালে তাড়াহুড়ো না করতে হয়। ব্রেকফাস্ট সারতেই লাগেজপত্র নামিয়ে দিল হোটেলের ভাইরা। ব্যাগ নামানোর এক নতুন টেকনিক। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमर। उमर। हाँ जी। थैंक यू। भाई आपका नाम? जफर। तो ये दोनों भैया आपको यहाँ मिल जाएंगे आप जब भी आएंगे। भैया आपका नाम क्या है? आमिर। हम लोगों ने इन्हीं से बात करके अपना रूम बुक किया था यहाँ पे। तो भैया थैंक यू। পাইন ভিউ রিসর্টের আমির ভাই ও বাকিদের সাথে বিদায় পর্ব সেরে আমরা রওনা দিলাম গুলমার্গের উদ্দেশ্যে। আমরা পেহেলগাম থেকে স্টার্ট করলাম গুলমার্গের পথে। এখন বাজে সকাল 10টা। দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছাই। আর এই হচ্ছে পেহেলগামের সকালবেলার ভিউ। পেহেলগাম শব্দের উৎপত্তি কুহেল থেকে। কুহেলি মানে হলো রাখাল বা যারা ভেড় বকরি চড়ায়, তাই পেহেলগামকে বলা হয় ভিলেজ অফ শেফার্ড। মাথার উপর আলগা রোদ, চারিদিকে পাইনের জঙ্গল আর লিদার নদীর অবিরাম বয়ে চলা, সব মিলিয়ে পেহেলগামের ল্যান্ডস্কেপ সত্যিই অনবদ্য। মায়ের কথা মতো রিঙ্কুজি গাড়ি দাঁড় করালো এক দোকানে, কাশ্মীর ভিলেজ আর্টস। উদ্দেশ্য যথারীতি কেনাকাটা। জিনিসপত্রের কোয়ালিটির জন্য পেহেলগামের এই দোকানের বেশ সুনাম রয়েছে। ভালো ভালো স্টক আছে এখানে, পশমিনা শাল থেকে শুরু করে क्या क्या है यहाँ पे बोलिए तो। भैया क्या क्या है स्टॉक में? सूट, साड़ी, स्टोल, कुर्ता, टॉप, मफलर, सब हैंडवर्क आइटम आएगा। और डिस्काउंट वगैरह डिस्काउंट कैसे है? 20% हमारे पास है, फिक्स प्राइस रहता है यहाँ। अच्छा, मतलब सारे प्रोडक्ट्स पे सारे डिस्काउंट है? प्रोडक्ट्स पे 20% डिस्काउंट, और जो चीज़ सेल में लगाया उसका भी फिक्स रहता है। अच्छा, कुछ दिखाएंगे रेडी, मतलब रेडी टू वेयर क्या क्या है? ये मिल जाएगा। ये क्या है भैया? वेरी ऑन कॉटन के क्या ये कुर्ती है या फेरन है, क्या है ये?
रियॉन कॉटन, दूसरा रहेगा ये जॉर्जेट वाला। ये जॉर्जेट। ये कितना प्राइस है? ये 15 का है, 1200 ओके, ये शॉर्ट कुर्तीज़ है। और फेरन, एक दो फेरन दिखाइए। ये सेमी पश्मीना का आएगा, सेम एज पश्मीना, पश्मीना नहीं आएगा, सेम एज पश्मीना। सेम एज पश्मीना। ओके, ये 2-in-1 ब्लैंकेट आएगा। ये यहाँ से देखिए हाथ लगा के पूरा सर्द रहेगा, फिर यहाँ से ये गर्म रहेगा। 2-in-1 पे आता है ये, अच्छा। सर्दी गर्मी दोनों में लग जाता है। क्या प्राइस है इसका? ये 35 का है, 2800, 2800 है। 2800। भैया क्या नाम है आपका? साहिब। आपका घर यहीं पे है? जी जी, यही है। अच्छा अच्छा। अगर किसी को पहलगाम से आना है तो फिर वो कैसे यहाँ पे इस दुकान को कैसे सर्च करेगा? मतलब ये लोकेशन कौन सी है? ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मटन यहाँ पे टाउन है, विलेज का नाम है। अच्छा। तो ये करीबन इस्लामाबाद से 10-15 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, उतना ही টাইম लगता है यहाँ पे। এখানে সব রকমেরই জিনিস আপনারা পেয়ে যাবেন। জ্যাকেট, সোয়েটার্স, উলেন সক্স, ব্যাগস, প্রচুর রকমের ব্যাগস রয়েছে। ব্যাগসের উপর অনেক ডিসকাউন্টও রয়েছে এখানে। আর সারা বছরই নাকি এখানে ডিসকাউন্টটা থাকে কিছু না কিছু। কেনাকাটা সেরে গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম গুলমার্গের পথে। খান্নাবাল থেকে যে রাস্তা ধরে অনন্তনাগ হয়ে পেহেলগাম গেছিলাম সেই পথেই এগিয়ে চলেছি খান্নাবলের দিকে। সেখান থেকে আমাদের ধরতে হবে NH1, যেটা পাম্পরে হয়ে শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছে। এই হচ্ছে আমরা বাইপাসে এবারে উঠে যাব। এদিকে পেহেলগাম চলে গেছিলাম, পেহেলগাম থেকে আমরা এলাম, এবারে সোজা রাস্তা হচ্ছে শ্রীনগরের দিকে। সামনে পড়বে পাম্পরে, পুলওয়ামা, তারপরে শ্রীনগর। শ্রীনগর কন্যাকুমারী হাইওয়ে ধরে কিছু দূর এগোতেই বাঁ হাতে পড়ল ঝিলাম ও রিম্বিয়ারা বিষাব নদীর সঙ্গম পয়েন্ট। সঙ্গম পেরোতেই এলো হালামুলা, যেখানের ব্যাট পৃথিবী বিখ্যাত। রিঙ্কুজি গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড় করালেন এক ব্যাট ফ্যাক্টরিতে। আমরা এখন পেহেলগাম থেকে গুলমার্গ যাওয়ার পথে বাইপাস তো ধরে নিয়েছি। এরপরে এখন আমরা যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে থাকছে সঙ্গম হালমোলা। সঙ্গম হচ্ছে ওই জায়গাটা, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে হালমোলা। এইখানে হচ্ছে ব্যাট ফ্যাক্টরি। এই হচ্ছে উইলো কাঠের ব্যাট এখানে তৈরি হয়। আর আমরা এখানে রিঙ্কুজি যেখানে দাঁড় করেছেন সেটা হচ্ছে, इसका नाम क्या है ये दुकान का? हालमो मेट्रो स्पोर्ट्स। मेट्रो स्पोर्ट्स बैट फैक्ट्री। हाँ, बैट फैक्ट्री। नाम का भाई अशरफ भाई। अच्छा, तो हमें दिखाएंगे कैसे यहाँ पे बैट ओके, आइए सर। प्रोडक्शन होता है। पूरा फैक्ट्री हमको घुमा के दिखाएंगे। देखो सर, जिस लकड़ी को ये बैट बनता है कश्मीर विल्लू का नाम है। ये विल्लू का जो पेड़ होता है ये दुनिया में 2 जगह पे है, कश्मीर और इंग्लैंड में है। तो ये कश्मीर विल्लू, वो इंग्लिश विल्लू बोलता है। पहले गोल जैसे लकड़ी होता है, फिर तो हम निकालता है इससे, रखते हैं धूप में 1 साल के लिए। कश्मीर में 1 साल को धूप नहीं होता है, यहाँ बारिश भी होता है, बर्फ भी होता है, मगर ये ऊपर में ऐसे ही रखना पड़ता है, ऊपर कुछ नहीं रखना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे सीज नहीं होता है, मजबूत होता है। 1 साल के बाद इसको भी जैसे निकालना पड़ता है इस मशीन से भैया, फिर डालना पड़ता है बजाने हैंडल ऐसे। फिर तो बैट को थोड़ा से ये आरी से मतलब शेप देना पड़ता है। जो लेदर बॉल के लिए बैट होता है, जिसको आप बोलते हैं ड्यूज बॉल, जो ड्यूज बॉल के लिए बैट होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। जब उसको थोड़ा से मतलब शेप देना पड़ता है, फिर बैट में हाथ से रंधा देना पड़ता है ऐसे। फिर बैट पानी में रखना पड़ता है 1 रात के लिए। अगर आप लोगों ने बैट खेला था, पहले क्या कर रहा है बैट में, पहले सरसों का तेल देता बैटों में, फिर हैमर से स्ट्रोक बनाता है या बॉल रखते हैं कपड़े में, दिन को टाक कर रहा है। आजकल ओके, आजकल नहीं है, आजकल रेडी टू प्ले बैट निकलता है फैक्ट्री में। आजकल वारंटी नहीं है बैट में, गारंटी देंगे बैट को, मगर सिर्फ लेदर बॉल के लिए बैट होता है। जब वो पानी में 1 रात के लिए रखना पड़ता है, दूसरे दिन क्या करना होता है, दूसरे दिन इसको कंप्रेस करना पड़ता है इस मशीन से। अच्छा। जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए जो बैट होता है 50 बार कंप्रेस, जो बाकियों के लिए बैट होता है 5 या 6 बार कंप्रेस होता है। जो बैट इसमें निकलता है अच्छा होता है, नहीं निकलता है यहीं टूटता है। मतलब आजकल पता चलता है बैट कैसे मजबूत होता है, मतलब इसको प्रेशर देना पड़ता है तो फिर पता चलता है कैसे। फिर यहाँ की बात सर, यहाँ रेगमाल देता है फिनिशिंग की बाद हैंडल को पहले धागा लगाना पड़ता है, फिर ये रबर, फिर सिटकर कोई भी होता है। ये कार्व क्यों होता है? ये टेनिस बॉल के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे स्ट्रोक होता है। अगर मतलब वो सीधा बैट होता है ना, उससे कैच होता है। क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैं MP में क्रिकेट खेलता है, इसलिए मैं बताऊँ, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता है।
ये मशीन क्या है ये आरी है ना सर, ये मतलब थोड़ा सा कट करना पड़ता है, कितना साइज बनाना है, क्या है। हाँ, इंटरनेशनल शेप देगा। देखो सर, ये टेनिस बॉल के लिए बैट है। आजकल डिजाइन बनाना पड़ता है। ये सब भी डिजाइन हो रहा है? अरे हमारे पास तो हर डिजाइन होता है भैया। ये देखो, तो इसमें क्या स्ट्रोक अच्छा रहता है? ये टेनिस बॉल के लिए होता है, लेदर बॉल में, डिवोस बॉल में नहीं चलेगा। क्या होता है, जैसे मतलब लोग फटा वाला पैंट पहनता है, वैसे ये भी हो गया। सही बात है। ये देखो सर, ये लकड़ी ऐसे होता है, इसको बनाएंगे, मतलब ऐसे बनाएंगे, 1 साल के लिए रखेंगे, मतलब ऐसे ही। अच्छा, हाँ, तो यहाँ रेग माल देते हैं भैया। प्रेसिंग उधर। इसमें क्या होता है? इसमें रेग माल होता है, फिनिशिंग फिनिशिंग होता है। उस मशीन से मतलब रंधा होना चाहिए। राधा आइए सर। देखो सर, ये कंप्रेस का मशीन होता है। ये कंप्रेस वाला। हाँ। ये कंप्रेस का मशीन होता है, जब पानी में रखना पड़ता है बैट, दूसरा दिन का मतलब आहिस्ता आहिस्ता दबाना पड़ता है। हाँ। इकट्ठे नहीं दबते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता दबाना पड़ता है। जो इंटरनेशनल होगा वो 50 बार, 50 बार, 50 बार। उसमें पता चल जाता है कि वो ये कितना मजबूत होता है। जब यहाँ निकलता है बैट, वो अच्छा होता है, नहीं निकलता यहाँ ही टूटता है। आइए सर। अच्छा भाई साहब, ये मंगूस बैट का क्या डिफरेंट होता है? मंगूस बैट कुछ नहीं होता, उसको कापुल देव का तलवार कहते हैं। जब कापुल देव ने वर्ल्ड कप जीता, उसी बैट से जीता। तो फिर हैडन ने भी उठाया एक बार, फिर क्या होता है, फिर तो इंटरनेशनल में बैन है। 3500 रुपये का बैट होता ना यहाँ, वो मिलेगा 15,000 रुपये में आपको। तो आपकी शॉप का नाम बताइए। मेट्रो स्पोर्ट्स। और आपने बोला कि आप कलकत्ता में भी आपकी शॉप है ना? कलकत्ता में मेरा मॉल जाता है, शॉप नहीं है, वो उनका शॉप है, मॉल मेरा है। कलकत्ता में अगर आपको इस शॉप का बैट अगर किसी को चाहिए तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपको? मेरे को फोन करना है तो फिर तो मतलब मैं दूंगा। नंबर बता दीजिए अपना। नंबर 6005041127। अगर बैट लेके गए और वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तब क्या करेंगे? फिर तो मेरे को फोन करना, तो मतलब मैं मतलब दूसरा बैट भी भेज दूंगा, या मतलब पैसा ही वापस भेज दूंगा, और कुछ। ओके ओके, ठीक है। हैंडल चढ़ के दिखाओ ना। ना मैं छोड़ो क्यों, छोड़ो बैट टेस्टिंग, छोड़ना क्यों। बैट टेस्टिंग, ठीक है। हैप्पी? एक तो छोटा वाला दे ना। वो 150 रुपये का है, 100 रुपये देना। চলিয়ে এই দোকানটা থেকে আমরা ব্যাট কিনেছি। দাদা খুব ভালো, খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছেন আমাদেরকে যে কিভাবে ব্যাট তৈরি হয়। আমাদের ব্যাট ফ্যাক্টরি থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় ভালোই রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে, আর চারিদিকে সিআরপিএফ জওয়ানদের মানে স্বতন্ত্র পাহারা। তার মধ্যে এগিয়ে চলেছি, দুধারে সর্ষের ক্ষেত। আর এইদিকে দেখুন, সব ব্যাট ফ্যাক্টরির সমস্ত কাঠ শোকাচ্ছে, সিজন হতে দিয়েছে। পুরো 1 বছর এরকমভাবে এরা কাঠকে সিজন করবে, তারপরে এই কাঠ দিয়ে ওরা ব্যাট তৈরি হবে। सामने टोल गेट। कौन सा टोल गेट है ये? अवंतीपुरा। মাথার উপর নীল আকাশ আর হাইওয়ের দুধারে হলুদ সর্ষের ক্ষেত, দূরে পাহাড় রাশি। সত্যি কাশ্মীরের প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেকটা বাঁকের যেন একটা নিজস্বতা আছে, সারাক্ষণ যেন তারা ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে থাকে। হাইওয়ের দুধারের সৌন্দর্য ক্যামেরাবন্দি করতে না করতেই আমরা এসে পৌঁছলাম পাম্পরে। আর যারা আমাদের লাদাখ সিরিজ দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন পাম্পরে মানেই কেসার কটেজ। আমরা এসেছি কেসার কটেজ। লাদাখ যাওয়ার সময় এইখানেই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, আর এর ভিডিও আমার সেই ব্লগে আমি দেখিয়েছিলাম। এবারে আবার সেই কেসার কটেজ।
ये यहाँ का मेन आइटम है। एक्चुअली ये पूरे इंडिया में पर्टिकुलर एरिया है पामपुर, जिसको बोलते हैं केसर हब या पामपुर। ये देखो ये केसर है, ये में हो गया केसर। एक्चुअली इसकी खेती है ना वो इसी एरिया में है, ऊपर खेत है 10-15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इसका सीज़न आता है 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर, खाली 1 महीने इसका सीज़न रहता है। और ये केसर का फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं, ये केसर फलों का फ्लावर है। और ये ज़मीन के ऊपर लगभग 2 इंच 2.5 इंच होता है। इसमें 6 दाने होते हैं, 3 रेड कलर के होते हैं, 3 येलो पार्ट के होते हैं। जो ये रेड पार्ट है ना इसको बोलते हैं स्टैग्मा, ये खाली 3 पत्ती केसर है। और ये जो येलो पार्ट है ना स्टैमिन, स्टैमिन इट इज़ द वेस्टेज पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये किसी काम का नहीं होता है। बट आधे लोग क्या करते हैं, आधे लोग इसी पे लोग कलरिंग करके केसर के नाम पर बेचते हैं। ये हो गया ओरिजिनल केसर। और जो पानी वाला बात है ना, ओरिजिनल केसर कैसे पता चलेगा? कैसे पहचानते हैं, हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव इट केसर इज ओरिजिनल और डुप्लीकेट। मेन प्योरिटी क्या है, फर्स्ट प्योरिटी इसकी ओरिजिनल की पहचान है, ये आगे की ओर मोटा होता है, पीछे पतला होता है, जस्ट लाइक स्नैप, जैसे सांप होता है ना उसी प्रकार का होता है। सेकंड प्योरिटी, अगर केसर को आगे वाले दांत से हल्का सा चबाएंगे ना, ये हल्का सा कड़वा आता है, स्लाइटली बिटर, ये आपको हल्का सा कड़वा लगेगा, बिटर। चबाओ 2-3 पत्ती चबाओ आगे वाले दांत से, ये हल्का सा कड़वा लगता है। दिस इज द फर्स्ट प्योरिटी ऑफ रियल सैफरन। एंड सेकंड प्योरिटी क्या है, जो आपके जिप पे कलर आ जाएगा, धीरे धीरे स्लोली कलर छोड़ेगा, कौन सा पीला कलर छोड़ेगा, खुद ये लाल कलर का होता है। और अगर रेड से रेड कलर आ गया वो फेक होता है, रेड से येलो कलर आना चाहिए। फर्क क्या है, इसका फेक केसर भी येलो कलर छोड़ता है, जो भुट्टे का बाल या ये भी आपको येलो कलर छोड़ेगा। देन फर्क कैसे करेंगे, ओरिजिनल केसर अपना धीरे धीरे अपना कलर छोड़ता है, स्लोली अपना कलर छोड़ता है। जो कलर कोड केसर है ना वो अपना कलर इंस्टेंट नहीं छोड़ता है, वो अपना कलर फटक से छोड़ता है, क्योंकि वो कलर कोड केसर है। आपको खाली एक पॉइंट याद रखने के लिए, सिंपली ओरिजिनल केसर डिजॉल्व नहीं होता है। ओरिजिनल केसर पानी या दूध में किसी भी लिक्विड में ओरिजिनल केसर घुलता नहीं है। अगर केसर घुल गया ना वो फेक होता है, सिंपली याद रखने के लिए। शिलाटी, एनी इन्फॉर्मेशन शिलाटी के बारे में, शिलाटी होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, हाउ टू प्रूव इट, कैसे चेक करेंगे कि कैसे शिलाटी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। शिलाटी एक्चुअली में होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। जैसे हमारा पसीना होता है ना, ये पहाड़ों का पसीना होता है, मॉइस्चर होता है, पहाड़ों का गम भी कहा जाता है, पहाड़ों का रस भी कहा जाता है। जैसे हमारा पसीना होता है, पहाड़ों का पसीना होता है। ये लद्दाख और कारगिल के पहाड़ से आता है। एक्चुअली शिलाटी का पत्थर आता है, वो वहाँ पे भाई के पास है, और लास्ट में प्रोसेस करके ये इस फॉर्म में आता है शिलाटी। ये इस फॉर्म में आता है शिलाटी ना, ये देखो, हाँ चेक करो, ये होता है शिलाटी। और शिलाटी के पहले हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ शिलाटी क्या क्या है। इसका मेनली जो कस्टमर को हम प्रेफर करते हैं, पेन के लिए यूज़ किया जाता है। किसी का बैक पेन रहता है या जॉइंट पेन रहता है, बॉडी में कहीं भी जगह पेन होता है, शिलाटी उसके लिए काम करता है। उसके अलावा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड पेशेंट के लिए शिलाटी बेस्ट रहता है। उसके अलावा बुज़ुर्गों में वीकनेस आता है, थकान आता है, कमज़ोरी आता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है शिलाटी। अगर आपको कोई भी चीज़ फिर भी अगर आपको घर पहुंच के अगर आपको हमारा चीज़ अच्छा लगे ना, मंगवाना हो, तो एक्चुअल हमारा शॉप ऑनलाइन शॉप है, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है www.kesarcottage.com, या पीछे इसका व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है, इंस्टा है, सब कुछ है। आप घर से भी कॉल कर सकते भाई हमें केसर भिजाओ, शिलाटी भिजाओ, ड्राई फ्रूट भिजाओ, 4-5-6 दिन में आपके घर पूरे डिलीवर हो जाएगा। কেশার কটেজ থেকে কেশার ও ড্রাই ফ্রুটস কিনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ট্রাই করলাম সেই পুরনো জায়গার কাশ্মীরি কাওয়া। भैया कैसे हैं? याद नहीं याद आया? अगस्त के महीने में आए थे हम लोग, कब आया था? अगस्त में आया था? हाँ। ये आपका घर है ना, ये है ना, याद तो है, याद आया अभी? क्योंकि ये समझो अपनी फैमिली सारा है। सर इसको बोलते हैं कश्मीरी में समोवार। क्या बोलते हैं सर? समोवार। अलादीन का चिराग भी बोलते हैं। अलादीन का चिराग, मगर जिन भी नहीं है जिन। इसके 2 पार्ट होते हैं सर, एक कोयला का, एक कहवा का। ये कहवा बन जाते सर इससे, इसको बोलते हैं शाही कहवा। ये रवा वाला होता है, ये चाय की तरह उबालना पड़ता है। उबालने के बाद छानी करना, छानी के बाद आप ये भी चीनी भी डाल सकते हैं या ये भी डाल सकते हैं मधु। इसके अंदर इसके अंदर होते हैं केसर और ड्राई फ्रूट होते हैं सर, जो आपको ये लाल लाल दिखाई देते हैं ना आपको सर, और बीच में मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं वालनट। क्या बोलते हैं सर? वालनट। हाँ, ये भी थोड़ा डाल रहा है। ये देखो कैसे, इसी को बोलते हैं शाही कहवा। जो पिए कहवा वो करी वावा।
इसमें फायदा क्या है? हाँ फायदा भी है, गला खराब, चस्टी खराब, पेट को गड़बड़ होते हैं उनके लिए लगता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने का मिर्चर है। जहाँ আপনারা যদি কাশ্মীর যান তাহলে পাম্পরের কাশ্মীরি কাওয়া অবশ্যই ট্রাই করবেন, এই স্বাদ খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। কেসার কটেজ থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, এবারে ডিরেক্ট গুলমার্গ। সামনে পুলবামা, এখানেই হয়েছিল এই অ্যাটাক। কেশর কটেজ থেকে কিছুটা এগোতেই সামনে এলো পুলবামার লেথাপোড়া ভিলেজ। 2019 সালের 14ই ফেব্রুয়ারি যেখানে ঘটেছিল সেই নারকীয় জঙ্গি হামলা, প্রাণ হারিয়েছিলেন 40 জন সিআরপিএফ জওয়ান। সেই ব্ল্যাক ডেকে স্মরণে রেখে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। এদিকে হচ্ছে NH44 যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আর ওইদিকে হচ্ছে শ্রীনগর বানিয়াল রেল লাইন। পুলবামা থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার এসে শ্রীনগরকে বাইপাস করে নারবাল থেকে একটা রাস্তা বাম দিকে কেটে চলে যায় গুলমার্গের দিকে। সিধে শ্রীনগর আর ইধার বারামুলা, ये বারামুলা होके গুলমার্গ চলে যাবে। बारामूला से पहले ही हमने जाम लगा। আচ্ছা, সোজা রাস্তা ওদিকে চলে যাচ্ছে শ্রীনগর, আর তার আগেই আমরা কেটে এদিকে চলে গেলাম বারামুলা রাস্তা ধরে। এটা দিয়েই চলে যাবো আমরা গুলমার্গ, কিন্তু বারামুলা দিয়ে পুরোটা যাবো না, তার আগেই আমরা কেটে যাবে রাস্তা গুলমার্গের দিকে। আমরা গুলমার্গ ঢুকতে চলেছি। এখান থেকে গুলমার্গ প্রায় 28 কিলোমিটার, আর সামনে লেখা গেটওয়ে টু গুলমার্গ। গুলমার্গের গেট পেরিয়ে জ্যাম কাটিয়ে কিছু দূর এগোতেই রাস্তার ভিউ যেন কেমন বদলে গেল। সামনে পরিষ্কার বাঁধানো রাস্তা, আর দূরে সাদা বরফে ঢাকা পীরপাঞ্জাল। সত্যি মনে যেন এক অদ্ভুত প্রশান্তি আসছিল। এখন বাজে দুপুর 3:30টার সময়। সূর্যের তেজ তো ভালোই, আর বরফের ওপর পরে পুরো চকচক করছে। টাংমার্গ পেরিয়ে আমরা চলেছি গুলমার্গের পথে। এবার আস্তে আস্তে অল্টিটিউডটা নিচ্ছে আর কি, গাড়ি এবারে চড়াইতে উঠছে। যত ওপরে উঠতে থাকলাম তত যেন প্রকৃতি তার সৌন্দর্যে ডানা মেলতে থাকলো। রাস্তার দুদিকে পাইন দেবদারুর গাঢ় সবুজ জঙ্গল, আর তার মাঝে কোথাও কোথাও বরফের আস্তরণ। দূরে নিচে কাশ্মীরের বাকি শহরগুলো তখন যেন দিনের শেষ রৌদ্র স্নানে মত্ত। আমরা গুলমার্গ পৌঁছে গেছি। এদিকে জাস্ট ভিউটা দেখুন, এদিকেই গন্ডোলা রাইড। আমাদের যেহেতু জেকেটিডিসির রুম বুক করা আছে, তাই আমরা যাবো হচ্ছে গল্ফ কোর্সের ওখানে। ওইখানে রিসেপশন থেকে আমাদের হয়তো হাটের চাবিটা দেবে, কটেজের চাবিটা দেবে, তারপরে আমরা কটেজে যাব। মাথার উপর সূর্যের তির্যক রশ্মি, পাশের সবুজ ভ্যালিতে বরফের মোটা চাদর, আর সামনে শ্বেত শুভ্র সদা হাস্য আপারবাদ। এই সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। জেকেটিডিসিতে এসে গেছি, তো এইখানে এলে ফার্স্ট হচ্ছে এই গল্ফ ক্লাব, এটা হচ্ছে রিসেপশন। এইখানেই আপনাদেরকে এসে কোন হাট বা কোন কটেজটা হবে তার চাবি বা তার नाम्बर सब कुछ আপনাদের নিতে হবে। भी कॉटेज बुक है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से चाबी यहाँ से पूरा सेटल करके नहीं, हम यहाँ एंट्री करते हैं। चाबी वहाँ पे होगी, अच्छा अटेंडेंट वहाँ पे है, अच्छा हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे खाना है तो यहाँ पे आना यहाँ पे पड़ेगा। आना है। রিসেপশন থেকে এন্ট্রি করিয়ে অ্যাটেন্ডেন্টের কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে আমরা গাড়ি করে এগিয়ে চললাম আমাদের কটেজের দিকে। গেছি গুলমার্গ। এখানে আমাদের জেকেটিডিসির কটেজ করা আছে। আমাদের কটেজ নাম্বার হচ্ছে 182। আমাদের কটেজটা হচ্ছে ডাউনে। এইখানে রাস্তাটা একটু বরফ আছে, আমাদেরকে কুলি করতে হয়েছে। কুলি করে ওই যে কটেজটা দেখা যাচ্ছে ওই কটেজটা আমাদের, আর এইটা হচ্ছে রাস্তা যাওয়ার। এই যে এই রাস্তা, ওই দূরে কটেজ। এই দাদা আমাদের ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন। ये फिसलन बहुत है बर्फ पे। हाँ जी, হবে না, হাত ধরে যাও, ভয় পেও না। ঠিক ঠিক, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের জেকেটিডিসির 5 বেডরুম কটেজ। এই একটা রুম, এই একটা রুম,
হচ্ছে বসার জায়গা, এখান থেকে বরফই বরফ। এই একটা ফার্স্ট बेडरूम এটা, ये थर्ड बेडरूम कॉटेज है, इसमें काम चल रहा है अभी। এটা হচ্ছে फोर्थ बेडरूम कॉटेज, 1 2 3 4 आपको 4 में हो जाएगा 5 बेड। और ये है 5 बेडरूम कॉटेज। তো এটা হচ্ছে কটেজ। গুলমার্গের জেকেটিডিসির 5 বেডরুম কটেজের ভিতর যেমন ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক তেমনই তার বাইরের ভিউটাও ছিল অসাধারণ। এই হচ্ছে আমাদের কটেজ, দারুণ একটা লোকেশনে। জেকেটিডিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে বুক করতে পারেন এই কটেজ। নাম্বার অফ হেডস বেসিসে বুক হয় এই কটেজ। 4 জন হলে 2 বেডরুম কটেজ, 10 জন হলে 5 বেডরুম কটেজ। এই 5 বেডরুম কটেজের ভাড়া পড়েছিল প্রায় 17,000 টাকা ইনক্লুডিং জিএসটি। আপনাদের সুবিধার জন্য জেকেটিডিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখলাম। এই হচ্ছে গুলমার্গের সন্ধেবেলা, সামনে বরফ, ওই চলে যাচ্ছে বাকি সব হোটেলগুলো যেগুলো রয়েছে। অন্ধকারে এখানে কি আসছে আমি জানি না, ক্যামেরায় কতটা কভার হচ্ছে আমি জানি না। এই চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। এই হচ্ছে গুলমার্গ। बशीर भाई जे आसबेन इनर साथे कांटेक्ट करबेन जेकेटीडीसी তে। बशीर भाई कैसा लग रहा है हम लोगों का, पहले आप ये बोलिए। बशीर भाई জেকেটিডিসির সরকারি এমপ্লয়ি হওয়ায় ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমরা শেয়ার করতে পারিনি। আর এই হচ্ছে আজকে আমাদের অর্ডার করা হয়েছে এখানে গুলমার্গে, কাশ্মীরি আলুর দম, কাশ্মীরি পোলাও। এই হচ্ছে কাশ্মীরি পোলাও। চিকেন কিন্তু পোলাও ঠিক আছে চম্পক? কি আমাদের তো গন্ডোলা রাইডের টিকিট আমরা অনলাইনে পাইনি। উদ্ধারকর্তা হচ্ছে আমাদের বশির ভাই। বলে দিচ্ছে একজনের সাথে, যে বলেছে সকাল 6:30টার সময় ওইখানে কাউন্টারে গিয়ে লাইন দিতে হবে। তো আমরা যাবো, কি কাউন্টারে লাইন দেবো, ওখানে গিয়ে দেখবো তৎকাল টিকিট হয়। তৎকাল টিকিটের ভাড়া কিন্তু 300 টাকা বেশি। অনলাইনে যে টিকিটটার দাম 800 টাকা, তৎকালে সেই টিকিটটার দাম 1100 টাকা। 6 बजे ही लग जाता है भीड़। आर्मी के लिए कुछ अलग सा लाइन फाइन होता है, कुछ अलग सा फैसिलिटी नहीं होता है ना। পরের দিন সকালে উঠতে হবে বলে আমরা সেদিন গুলমার্গে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড়ি। এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি। পরের এপিসোডে থাকবে আমাদের গুলমার্গের গন্ডোলা রাইড চড়ার গল্প। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।